Hello everyone, welcome to the another lecture of environmental studies. Our course code is 22447. In this lecture we are going to see our unit outcome 5E. Our topic 5 is social issues and environmental education, and in that we are going to see our subtopic water conservation. To satisfy our subtopic we are going to see our course outcome E. Manage social issues and environmental ethics as lifelong learnings. सो आज के सब्जेक्ट में आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है और व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले आप सभी को विश यू हैप्पी वेरी वेल वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है और पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की तरह से। सो हम आज देखते हैं कि what we will learn today, understand how water conservation is important and how it helps in green belt development, watershed management, learning pros and cons of how interlinking of rivers. So our agenda points is rainwater harvesting, groundwater recharge, green belt development, watershed management and interlink of rivers. And the content of today's lectures are what is rainwater harvesting and why it is needed, how rainwater harvesting helps in groundwater recharging, define green belt development, significance of watershed management and interlinking of rivers in India. So those are our learning objective and key learnings. And this is the concept map of today's lecture. Water management, in that we are going to see rainwater harvesting, groundwater recharge, green belt development, watershed management and interlinking of the rivers. So let's start with rainwater harvesting. Rainwater harvesting basics. Rain is the first form of water in hydrological cycle and hence is a primary source of water. Rainwater harvesting means to understand the value of rain and to make optimum use of rainwater at the place where it falls. The rainwater collected can be stored for direct use or it can be recharged to the groundwater. So exactly concept क्या है rainwater harvesting का इस diagram की तरफ से हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं अर्थ में जो 71% जो हिस्सा है टोटल अर्थ का वो वाटर का है, ओशियन वाटर का है। ओके, उसमें से जो पूरा अर्थ पे वाटर अवेलेबल है उसमें से 97% जो वाटर है वो ओशियन वाटर, साल्टी वाटर है, जो कि हम डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते, उसे हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है और बाद में उसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट बेनिफिशियल। रिमेनिंग 3% में से 2% जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में है, जो अंटार्कटिका, आर्टिका और जो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां पे जो आइस है उनके फॉर्म में जो रिमेनिंग 2% वाटर है वो आइस के फॉर्म में। और बचा कुछ जो 1% वाटर है जो हमारे नदी है, तालाब है, अंडरग्राउंड है या फ्रेश वाटर उसमें हम कह सकते हैं ह्यूमन यूज के लिए, एनवायरमेंट यूज के लिए वो सिर्फ 1%। तो हम समझ सकते हैं कि व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन इज सो इम्पोर्टेंट। Out of 100%, 99% of water is not useful for the human beings or to our surrounding environment. Only 1% water we have to use. So we can understand why it is so important to conserve water or conservation of the water. So here is one technique, rainwater harvesting. So everyone is knowing the fact rain is the first form of water in a hydrological cycle and this is our primary source. जो बारिश से जो पानी आता है जो हमारी साइकिल है उसमें से पहला स्रोत है। ओके, और उसी से वही हमारा प्राइमरी सोर्स है और उसी से हमें पानी मिलता है। जो भी हम देखते हैं हमारा अंडरग्राउंड वाटर हो गया, बोरवेल्स हो गए, वेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, उन्हीं का जो उनमें से जो पानी आता है उनका जो प्राइमरी सोर्स है वो है रेन वाटर। और रेन वाटर से ही जो बाकी के जो सेकेंडरी सोर्सेस है उनमें से पानी आना शुरू हो जाए।
तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो धरती पे बारिश हो जाती है, ओके, उसमें से हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे जो पानी डायरेक्टली नदी में जाता है और नदी से समुद्र में चला जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे घर है, घर के ऊपर जो छत है, उस पे जो बारिश गिरती है, वो जो पानी है वो हम कलेक्ट कर देते हैं, ओके। एक स्पेसिफिक टैंक में हम उसे स्टोर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक यूज के लिए, या फिर उसे क्या करेंगे हम डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में, जो बोरवेल से ग्राउंड वाटर में उसे छोड़ देंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो ग्राउंड का लेवल है वो धीरे 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 इंक्रीज हो जाएंगे, उसे हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये जो टेक्निक है उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रूप है, रूप से एक पाइप निकाला हुआ है, देख सकते हैं हम, और यहाँ पे टैंक है और यहाँ पे बोर है। जब बारिश होती है तो इस छत से जो पानी निकलता है वो इस पाइप के थ्रू हम टैंक में स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन फिलिंग ऑफ टैंक, रिमेनिंग वाटर वी हैव टू सेंड टू द बोरवेल टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर। This is the basic of rainwater harvesting. Water harvesting can be undertaken through a variety of ways. There are different techniques and ways to harvest rainwater. The first one is capturing runoff from rooftops. जो हमारे घर की छत होती है या कोई भी इंडस्ट्री की छत होती है, वहां से जो पानी बारिश के समय जो पानी आता है उसे कैप्चर कर सकते हैं हम। कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम लोकल कैचमेंट्स, जो लोकल एरिया वगैरह होते हैं जो पानी होता है उसे भी हम कैच कर सकते हैं। कैप्चरिंग सीजनल फ्लड वाटर फ्रॉम लोकल स्ट्रीम्स, जब भी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड्स वगैरह आ जाता है, तो लोकल के स्ट्रीम है उस वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एंड कंजर्विंग वाटर थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट, ये भी एक अनदर टेक्निक है, वो आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स आर वी कैन यूज टू हार्वेस्टिंग रेन वाटर। And why it is so important? Because of rainwater harvesting, the ground level, okay, the underground level of the water gets increases, and this is beneficial for the human beings and the environment. Rainwater harvesting and its principle. What? It is the activity of direct collection of rainwater. Why? To extend the fruit of the monsoon, that is conserve rainwater. So, what exactly rainwater harvesting means? This is the activity of collecting, direct collection of rainwater. Why it is necessary? To extend the fruits of monsoon, that is conserve rainwater. How we can achieve this? Catch rainwater where it falls or capturing the runoff in the village or town while taking measures to keep that water clean by not allowing polluting activities to take place in the catchment. How it can be achieved? जहाँ पे भी बारिश हो जाती है वहां से हम घर के छत से हो गया या जो बहता पानी है गांव का या किसी टाउन का, उसे हम एक स्पेसिफिकली कैच करेंगे उसे, कोई भी जैसे छोटे छोटे डैम्स वगैरह बना के या फिर नाले वगैरह बना के हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। और हमें उस समय इससे ध्यान रखना है कि जो भी पोल्यूटिंग एक्टिविटीज है वहाँ का जो एटमोस्फेयर का पोल्यूशन है या कोई भी पोल्यूशन है उस पानी में नहीं आना चाहिए। दिस इज द टेक्निक and where we can do it, any land anywhere can be used to harvest rainwater. कोई भी जगह हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसका एक पॉपुलर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं नाम फाउंडेशन है, पांडे फाउंडेशन है, तो ये सारी एनजीओ है, वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। जैसे कि जो हमारे खेत हुए वहाँ पे वो हम क्या करते हैं, पानी रोकने के लिए, बहाव रोकने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, या फिर जो भी बारिश होती है उसका पूरा का पूरा पानी हमारे क्या हो जो लोकल एरिया से कोई भी जमीन के अंदर जाना चाहिए, वो बहकर नदी में या समुद्र में नहीं जाना चाहिए। और उसी से क्या होता है, जितना पानी हम रोक के रखेंगे उतना ही ग्राउंड लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से जो ड्राई बोरवेल से, जो पॉन्ड से, जो लेक से, उनके बीच जमीन का अगर अंडरग्राउंड का लेवल बढ़ रहा है तो उन्हें भी पानी आ जाएगा। और जो वाई हमने अभी देखा एक्सटेंड द फ्रूट्स ऑफ मानसून, मानसून की वजह से जो खेती है वो हम कम से कम 4 महीने करते, 5 महीने करते, तो हम 10 से 12 महीने तक कर सकते हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। So this is a very important technique to extend the fruits of the monsoon.
So here we can see the objective of the rainwater harvesting: provide drinking water, provide irrigation water, increase groundwater recharge, reduce stormwater discharge, urban floods and overloading of sewage treatment plants, reduce seawater ingress in coastal areas. So here we can see the first objective is provide drinking water. We can take we can understand it by taking an example of the Waguli. We can see in the Waguli approximately 10 months there is a water triangle providing water to different societies. So why this is happens? Because of increasing the population, there is a number of societies, infrastructure is built. Because of that, huge demand of the water gets increases. So because of that, every society has their own borewell, every plot has their own borewell. So groundwater level goes down, down, and down. So there is a necessity of tankers to fulfill the water requirement. With the help of rainwater harvesting, we can eliminate the things, and because of that, we can get a drinking water. Another one is provide irrigation water. Because of rainwater harvesting, we previously saw that the level of the borewells, ponds gets increases, and because of that, we can get available water for the irrigation. Increases water underground recharge. With the help of rainwater harvesting, we can increase underground recharge. We can directly send the rainwater to the ground. With the help of that, we can increase underground recharge, reduce stormwater discharge, urban floods, and overloading of sewage treatment plants. So what's happened due to the heavy rain? We can see there is a stormwater, urban floods. So with the help of rainwater harvesting, we can reduce that, and there is no loading to the sewage treatment plants. And another one is reduce seawater ingress in coastal areas. So what's happened? The Middle East countries like Dubai, Iran, they are totally depends on the seawater. They do the treatments of the seawater and use that water for the various purposes. But with the help of rainwater harvesting, they have to reduce seawater ingress in coastal areas. So those are the important objective of rainwater harvesting. So here we can see the different methods of rainwater harvesting. First one is Temple Lake of India. What exactly the Temple Lake of India? Rainwater harvesting methods, traditional methods in that we can see temple tanks of India and ponds. सो इन द ट्रेडिशनल मेथड वहां पे क्या हो जाता है, हम बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स देख सकते हैं, उनके आगे क्या किए डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स फॉर्म किए, जो भी पानी आता है वो पॉन्ड्स वो टैंक्स में जमा हो जाता है और बाद में वो अंडरग्राउंड को रिचार्ज करता है। और पॉन्ड्स भी देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटों में ऐसे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिसे हम मराठी में शेततळे कहते हैं। ओके, तो जब बारिश का समय होता है तो उसे हम क्या करते हैं, फिल करके रखते हैं और बाद में उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। And here we can see the modern methods: absorption pit method, absorption well method, welcome bore method, group houses, trace water saving method. So there are few different methods we can use for the rainwater harvesting. So another important point is groundwater recharge. Groundwater recharge is a hydrologic process where water goes downstream from surface water to underground. सो एग्जैक्टली क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे अभी ये प्रॉब्लम महसूस होने लगी है। जैसे जैसे बारिश खत्म होती है और जून जुलाई शुरू होने से पहले अप्रैल में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वेल्स ऐसे होती है या पॉन्ड से होते हैं, ऐसे होती है कि जहाँ का जो वाटर सोर्स है वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है कंटिन्यूसली उसका यूज करने की वजह से वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, एंड होने लगता है। जब वो खत्म हो जाता है या फिर एक स्पेसिफिक लेवल के नीचे जाता है तो हमारे बोरवेल से जो पॉन्ड से जो वेल से वो काम करना बंद हो जाता है क्योंकि वहां पे पानी नहीं होता है। एक नेचुरल फिनोमेना। और वो रिचार्ज कैसे होता है? जैसे भी बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली बारिश का जो पानी है वो जमीन के अंदर जाता है और जो भी उसके जो झरने वगैरह होते हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं।
सो दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। लेकिन यहाँ पे दो तरीके, एक है नेचुरल रिचार्ज और दूसरा है आर्टिफिशियल रिचार्ज। अभी नेचुरल रिचार्ज पहले तो एक्चुअली सभी जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वहाँ के जो रिसोर्स है उनका हम ज्यादा यूज करने लगे। उसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल कैपेसिटी हो वो कम पड़ने लगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम कि नेचुरल रिचार्ज कैसे होता है और क्या है। The process of recharge of groundwater naturally is called natural recharge. Rainwater enters inside the soil through void and the recharge happens naturally. जो भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की प्रोसेस है वो जो नेचुरली होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिचार्ज। उसमें क्या होता है, रेन वाटर जो है जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड धीरे 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 वो जमीन के अंदर जाता है, जैसे क्या होता है रिचार्जिंग नेचुरली हो जाता है। और आर्टिफिशियल रिचार्ज में क्या हो जाता है, द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली obstructing the flowing rainwater and inducing its infiltration to increase the groundwater reservoir is called artificial recharge. It is carried out when natural recharge cannot fulfill the requirement throughout the year. Exactly, we see in previous what exactly artificial recharge. The practice of artificially obstructing the flowing rainwater. जो भी बारिश का पानी है, जो बहता पानी है, उसे क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोक के रखते हैं और उसे क्या करते हैं, हम जमीन में इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जमीन में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स से जो पानी जाएगा उससे हमारे जो रिसोर्स है कम पड़ते हैं, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या करेंगे, हम उसे रिचार्ज करेंगे, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज। और यहाँ पे हम देखेंगे द डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मेथड्स। सो आर्टिफिशियल में हम देखते हैं स्प्रेडिंग मेथड, इंजेक्शन मेथड एंड इंड्यूस रिचार्ज मेथड। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये कैसे कैसे ये वर्क करता है, ये सिस्टम जो है वो कैसे कैसे वर्क करता है। Other methods of artificial recharges in urban areas are recharge through pits, trenches, wells, shafts, rooftop collection of rainwater, rooftop collection of rainwater. ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से अंडरग्राउंड रिचार्ज करेंगे। सो इसमें हम देखते सकते हैं सबसे पहले कि इसको रिचार्ज कैसे किया जाता है। तो जनरली क्या किया जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बोरवेल्स है वो क्रिएट किए जाते हैं और जो भी वाटर है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि रूफटॉप से कलेक्शन किया या रॉड टॉप से कलेक्शन किया और डायरेक्टली हम उस बोरवेल में उसे छोड़ देते हैं, वो डायरेक्टली जमीन के अंदर चला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कभी डायरेक्टली अंदर जाएगा तो लेवल क्या करेगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और नेचुरल में क्या होता है, तो उसे जाने में टाइम लगता है, तब तक बहुत सारा पानी क्या होता है नदी को जाके मिलता है और वो बाद में समुद्र को चला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली नीचे जाके छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से लेवल है वो तेजी से बढ़ जाता है। So here we can see green belt development. Green belt development in urban areas. Green belt land refers to an area that is kept in reserve for an open space, most often around larger cities. The main purpose of the green belt policy is to protect the land around larger urban centers from urban sprawl and maintain the designated area for forestry and agriculture, as well as to provide habitat to wildlife. So what exactly a green belt? We can see the green belt means what? There is a reserve open space, most often around large cities. इसमें क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया रिजर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, तो हम आगे देखेंगे। The main purpose of the green belt policy is to protect land around larger urban centers from urban sprawl and maintenance the designated area for forestry and agriculture, as well as to provide habitat to the wildlife. ऐसा क्यों किया जाता है,
क्योंकि जब भी कोई बड़ी सिटी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन किया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन किया जाता है, वो फॉरेस्ट कंजर्व करके रखते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के लिए रखते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड लाइफ। जो भी अर्बनाइजेशन की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है वाइल्ड लाइफ, उनके लिए वो रिजर्व होती है, एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ द ग्रीन बेल्ट। So why it is so important? अर्बन सिटीज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एयर पोल्यूशन हो जाता है, और ये जो भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। वहाँ की जो भी हम बोल सकते हैं उसे कि वाइल्ड लाइफ है, वो इंडेंजर आ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करने से वजह से जगह भी कम पड़ती है। तो इस तरह से हम वहाँ पे एक उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट। Green belt development in industrial is the purpose of the green belt around the industrial site is to capture the fugitive emission, the noise generated, and improve the aesthetics. The purpose of green belt at project site will form an effective barrier between the plant and the surroundings. Open space where tree plantation may not be possible only be covered with shrubs and grass to prevent erosion of topsoil. Adequate attention is paid to plantation of trees, their maintenance and protection based on geology, soil condition and topography of the site area. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनका जो एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो प्लांट्स वगैरह है वो प्लांट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी नॉइज वगैरह पोल्यूशन हो जाएगा इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पोल्यूशन होता है, और जो भी वो पोल्यूशन है उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं उस चीज से। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री है उसके अराउंड क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स वगैरह प्लांट करते हैं, और उसी से क्या, उसे भी हम कह सकते हैं ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल ईस्ट। So here we can see the advantages of the green belt development. Air pollution control. Trees helps in removing carbon dioxide and the outer pollutants from air by releasing oxygen into the air, thereby improving air quality. So everyone knows, with the help of synthesis process, trees gets carbon dioxide and releases oxygen. With the help of that, we can minimize the air pollution. Again, next one is noise control. A green belt reduces the intensity of sound and functions as a barrier. Trees can either deflect, attract, or may absorb sound to reduce its intensity. So noise pollution is controlled because of that. And next one is soil erosion control, which improves the soil quality and water conservation. The green belt helps to contain water runoff. So those are some advantages of the green belt development. So here we can stop. We will meet again in next lecture. Thanks for watching this lecture.